وادی کمراٹ قدرت کے ہر رنگ سے مزین وادی کمراٹ بلند و بالا برف پوش چوٹیوں، گھنے جنگلات، بہتے ندی نالوں، آبشاروں، وسیع چراگاہوں، دل فریب جھیلوں، رنگ برنگ پھولوں اور اپنے دامن میں کہیں پرسکون اور کہیں پرجوش انداز میں بہتے دریائے پنجپورہ کا مسکن ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر دیر کے مشرق میں واقع ایک انتہائی خوبصورت وادی اور مشہور سیاحتی مقام ہے۔ وادی کمراٹ تک رسائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 370 کلومیٹر کی مسافت لوکل ٹرانسپورٹ اور ذاتی گاڑی پر چکدرا تک بذریعہ موٹر وے اور اس سے آگے دیر روڈ کا استعمال کر کے طے کیا جا سکتا ہے۔ تاہم موٹر سائیکل کی صورت میں موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ پر سفر کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو وادی کمراٹ کے ان 10 انتہائی خوبصورت مقامات کے بارے میں آگاہی دوں گا جن کی سیر کیے بغیر آپ کا کمراٹ کا سفر ادھورا تصور ہوگا۔ اپنی فہرست کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے متعلق آپ کو آگاہی پر وقت ممکن ہو سکے۔ شکریہ۔ ہماری فہرست میں پہلے نمبر پر ہے تھل۔ دیر روڈ پر موجود باب کمراٹ سے براستہ شرنگل، بیاڑ اور کلکوٹ 65 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں تھل۔ آخری 30 کلومیٹر کی سڑک اچھی حالت میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ سفر لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ تھل وادی کمراٹ کی سیاحتی سرگرمیوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر رہائش اور کھانے کی سہولیات بآسانی دستیاب ہیں۔ ویسے تو تھل ایک خوبصورت وادی ہے اور دیکھنے لائق ہے، مگر تھل میں موجود جامع مسجد تھل تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس مسجد کو 1865 میں دیر کوہستان میں تعمیر ہونے والی پہلی اور مکمل طور پر لکڑی سے بنی ہوئی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دیار کی لکڑی کے بڑے بڑے ستونوں کے سہارے بنی ہوئی چھت اور لکڑی پر خوبصورت کنندہ کاری قدیم ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ مسجد کا طرز تعمیر اپنے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ تھل کے شمال مشرق میں آگے بڑھتے ہوئے ہماری فہرست کے دوسرے مقام کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ہے کمراٹ جنگل۔ تھل سے کمراٹ جنگل تک کا سفر اپنے آپ میں کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہے۔ یہ سفر دشوار گزار ہونے کے باعث صرف موٹر سائیکل یا جیپ پر ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ قریب آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے کمراٹ جنگل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دریائے پنجپورہ کے ساتھ ساتھ دیار کے درختوں پر مشتمل گھنا جنگل ایسا سما باندھ دیتا ہے کہ آپ قدرت کے اس شاہکار میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس گھنے جنگل میں ہر معیار کے ہوٹلز اور کیمپنگ سائٹس موجود ہیں اور آپ اپنا کیمپ بھی لگا سکتے ہیں۔ زور و شور سے بہتا دریا، جنگل کی مہک اور رات میں کیمپ کے باہر آگ کے گرد بیٹھنا، اس قدرتی ماحول میں رات گزارنا اپنے آپ میں ایک منفرد تجربہ ہے۔ نمبر 3، کمراٹ آبشار۔ کمراٹ جنگل میں اونچے نیچے راستوں پر چلتے، پانیوں سے گزرتے قریب 35 سے 40 منٹ کی مزید مسافت طے کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں کمراٹ آبشار پوائنٹ پر، جہاں سے 10 منٹ کی پیدل مسافت طے کر کے آپ کی نظر پڑتی ہے انتہائی دل فریب آبشار پر۔ کمراٹ آبشار کی بلندی کافی زیادہ ہے۔ بلندی سے گرتے ٹھنڈے اور صاف شفاف پانی کی پھوار دور تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ بہت سے منچلے آپ کو آبشار کے پانی میں نہاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ارد گرد موجود سرسبز و بلند پہاڑ آبشار کے گرتے ہوئے پانی کا شور ایک خوبصورت احساس پیدا کرتا ہے۔ آپ آبشار کے قریب موجود سٹال سے چائے اور کولڈ ڈرنک سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آبشار کے گرد و نواح میں بہت سے ہوٹلز اور کیمپ سائٹس بھی موجود ہیں۔ نمبر 4، کالا چشمہ۔ آبشار سے مزید آگے سفر کرنے پر بلندی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ وادی کے حسن میں بھی بتدریج اضافہ ہو جاتا ہے اور
नज़ारे मजीद खुलकर सामने आना शुरू हो जाते हैं। करीब 40 से 45 मिनट का सफर तय करके आप पहुंच जाएंगे अपने अगले मुकाम काला पानी तक। नाम के बरक्स यहाँ पर मौजूद मीठे पानी के चश्मे या दरिया के पानी का रंग बिल्कुल भी काला नहीं है, बल्कि शफाफ बहते पानी के नीचे मौजूद पत्थर काले रंग के हैं और खूबसूरत नज़ारों की वजह से ये जगह वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन है। ये जीप ट्रैक मजीद थोड़ा सा आगे दो जंगा तक जाता है। आप चाहें तो मजीद सफर भी कर सकते हैं। अब काला पानी पर भी बहुत से होटल्स बन गए हैं। अब चलते हैं थल के जनूब मशरिक में, जहां पर हमारा अगला सियाहती मकाम जहाज बांडा, जो कि सतह समुंदर से 10,170 फुट बुलंद एक सरसब्जो शादाब मैदान है। वसी चरागाहों, मोतदिल मौसम, जंगलात और बहते नदी नालों से मुज़य्यन जहाज बांडा जन्नत नज़ीर और एक पुरसुकून सियाहती मकाम है। जहाज बांडा तक पहुंचने के लिए थल से करीब 1 घंटे की मुसाफत तय करके आपको पहुंचना है टकई बांडा, जहां से टिकी टाप तक 30 मिनट की मुसाफत सिर्फ जीप, मोटरसाइकिल या पैदल ही तय की जा सकती है। टिकी टाप से जहाज बांडा तक 2 से 3 घंटे का पैदल ट्रैक है। ट्रैक कहीं पर आसान और कहीं पर मुश्किल है, मगर खूबसूरत नज़ारे आपको थकावट का एहसास होने ही नहीं देते। अलावा अज़ीम पैदल चलने में दुश्वारी की सूरत में घुड़सवारी की सहूलत भी मौजूद है। जहाज बांडा में होटल्स मौजूद हैं जहां रिहाइश और खाना दस्तयाब है और कैंपिंग भी की जा सकती है। नंबर 6, जहाज बांडा आबशार। जहाज बांडा में बहने वाली नदी का पानी एक मुकाम पर बुलंदी से आबशार की सूरत में नीचे गिरता है। इसको जहाज बांडा आबशार का नाम दिया जाता है। जहाज बांडा के आखिरी होटल से 20 से 25 मिनट के पहाड़ से उतराई वाले ट्रैक की मदद से आप पहुंच जाते हैं जहाज बांडा आबशार तक। आबशार का नज़ारा दीदनी और गिरते पानी का शोर आपको कुदरत के और करीब ले आता है। आबशार से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक और जन्नत नज़ीर वादी आपको दावत नज़ारा देती नजर आएगी, जो कि है हमारी फहरिस्त में 7वें नंबर पर मौजूद कुंड बांडा। एक तरफ बुलंद बाला बर्फपोश पहाड़, दूसरी जानिब हरियाली और मखमली सरसब्ज घास से बनी चरागाहों के बीचों बीच बल खाता साफ शफाफ पानी पर मुश्तमिल पुरसुकून अंदाज में बहते दरिया का समा ऐसी कशिश पैदा करता है कि सयाह खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस करते हैं। इस दरिया को मुकामी लोग नागन दरिया का नाम देते हैं। कुंड बांडा में अब होटल्स और कैंपिंग साइट्स मौजूद हैं और आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। नंबर 8, छोटी कटोरा झील। जहाज बांडा से मशरिक में पुरपेच पहाड़ी रास्तों, छोटे बड़े नदी नालों और इंतहाई खूबसूरत चरागाहों से गुजरते, जिनमें चरते मवेशी और अपने रोजमर्रा के काम करते मुकामी अफराद आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खुश आमदेद कहते हैं। करीब 2 घंटे की आसान ट्रैक पर मुश्तमिल पैदल मुसाफत तय करके आप पहुंच जाते हैं छोटी कटोरा झील पर। बुनियादी तौर पर यह झील कटोरा झील से आने वाले पानी से ही बनती है, मगर मकामी अफराद के दिए हुए अपने नाम के बरक्स ये इतनी भी छोटी नहीं है। आप झील पर मौजूद टक शॉप से चाय और झील में कश्ती रानी से भी महसूस हो सकते हैं। छोटी कटोरा झील तक रसाई घुड़सवारी के जरिए भी मुमकिन है, जिसके लिए घोड़ा जहाज बांडा से मिल जाता है। नंबर 9, कटोरा झील। अपने 3 अतराफ में बुलंदो बाला बर्फानी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से बनने वाली कटोरा झील दूर से देखने पर एक बहुत बड़े प्याले से मुशाबिह नजर आती है और यही मुशाबिहत इसकी वजह तस्मिया भी है। झील तक रसाई आसान काम नहीं है। छोटी कटोरा झील से मजीद 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पथरीले पैदल ट्रैक पर तय करके ही झील तक पहुंचना मुमकिन है। खूबसूरत वादी, ग्लेशियर, बहती नदी, मगर आपकी हिम्मत को आजमाता पथरीला पुरखतर सख्त चढ़ाई वाला रास्ता बहुत से सयाहों को हिम्मत हारने पर मजबूर कर देता है। मगर जो हिम्मत नहीं हारते वो झील को देखते ही सारी थकान भूल जाते हैं। दौरान ट्रैक और झील पर सिर्फ चंद एक ही वर्कशॉप्स दस्तयाब हैं,
जहां चाय वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा खाने पीने का सामान आपको जहाज बांडा से ही साथ लाना होगा। नंबर 10, बड़गोई टाप। थल बाजार के मशरिक में सतह समुंदर से 11,560 फुट की बुलंदी पर वाक़या बड़गोई पास जुग्राफियाई एतबार से वादी कलाम और वादी कुमराट के जंक्शन पर वाक़या एक पहाड़ी दर्रा है और मशहूर सियाहती मकाम कलाम से कुमराट तक रसाई का मुख्तसर तरीन रास्ता भी है। बड़गोई पास तक रसाई के लिए थल बाजार से करीब 20 किलोमीटर का जीप ट्रैक मौजूद है। सड़क बेहतर हालत में है और रास्ता बहुत खूबसूरत है। शुरू में जंगल से होते हुए आप जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, रास्ता दुश्वार मगर मौसम और नज़ारे दोनों दिलकश होते जाते हैं। बड़गोई टाप पर आपको तमाम फलकपोश चोटियां तहद्दे निगाह नजर आना शुरू हो जाती हैं। सरसब्ज चरागाहें एक मखमली कालीन की मानिंद महसूस होती हैं और चारों तरफ का नज़ारा आपको इस खूबसूरती के खालिक की तारीफ पर मजबूर कर देता है। बड़गोई टाप पर खाना और चाय दस्तयाब है और अपर दीर का ये बेहतरीन सियाहती मकाम है। ये थे वादी कुमराट के 10 मकामात जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वादी कुमराट से मुतल्लिका मजीद तफसीली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन वीडियो से भी मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।